Very good morning, children. Welcome to the classroom. I know and I just hope you all are fine and doing well in your studies. The most importantly, you are watching the videos on a regular basis because it only help you to make your concepts clear, as well as it will make you to score good marks in your board examination. The videos are very crystal clear. The concepts are well defined. So I don't think so any problem will come. So keep learning, children. The chapter which we are discussing in current videos is the chapter 8, Psychology and Life. In that chapter, we have discussing the topic how human being influencing the environment. Human being environment को कैसे influence कर रहे हैं? So we get to know that they are influencing the environment in terms of. So we are studying this topic. So we get to know that how human being influencing the environment. We know that human being influencing the environment in terms of noise, pollution, crowding and natural disaster. We understand the word and we understand the concept noise. We understand that noise क्या है? Noise is something sound which is unpleasant, annoying or irritating. कोई भी आवाज, any sound that is annoying, unpleasant, irritating is considered to be noise. Pollution have not only physical effect but also have the psychological effect. Many substances are there which are released from the different industries. They may influence the mental health of an individual. Crowding. Crowding is a feeling of discomfort due to the presence of other person. बाकी लोगों के प्रेजेंट रहने पे एक जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती है, दैट इज अ क्राउडिंग, अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ कंट्रोल. It also has some negative effects. We read about crowding tolerance and competition tolerance. We read about a physical space, the importance of physical space. Physical space कितना important है? We read that Edward Hall ने कुछ interpersonal physical distance, he talked about 4 kind of interpersonal physical distance which should be maintained by people. What are the 4 kind? Intimate distance, personal, social and public distance. So ये सब हमने पढ़ा. Today we are going to focus more on the natural disaster, which is the last influence of human being on the environment. आपको लगेगा बच्चों की natural disaster तो environment करती है. No children, it is us who are doing everything. Natural disasters. What is natural disaster?
So the environmental stressors such as noise, various form of pollution and crowding are the result of human behavior. By contrast, natural disasters are stressful experiences that are the result of nature's fury. ये nature भी करती है, obviously nature का ही है, consequence of disturbances in the natural environment. But कैसे होता है? Because of the disturbances in the natural environment which was created by us. We are creating disturbances, and that is why the nature is coming in their full blown. Some of the common example of natural disasters which you all know are earthquake, tsunami, flood, drought, cyclone, volcanic eruptions. So ये कुछ common है. इनके अलावा भी कुछ डिजास्टर होते हैं जैसे कि वॉर, ये भी नेचुरल डिजास्टर में आएंगे. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स सच एज लीकिंग ऑफ पॉइजनस और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द इंडस्ट्रियल प्लांट और एपिडेमिक. However, war and epidemics जो होते हैं are human made events. Although their effect can also be as severe as those of natural disaster. These events are called disaster because they cannot be prevented, usually come without any warning and result in immense damage to human lives and property. ये सडन आते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसकी वजह से. ये प्रिवेंटिव नहीं होते जल्दी. आप प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं बट ये प्रिवेंटिव नहीं होते. एंड दे ऑल्सो लीड टू अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इमर्ज होता है विच इज नोन एज PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. PTSD, ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. सो हमने ये जाना चिल्ड्रन अभी तक व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर क्या है? इट इज समथिंग विच इज नॉट प्रिवेंटिव. इट इज समथिंग विच केम सडनली. इट क्रिएट अ ग्रेट लॉस. Some of the common examples of the natural disaster, and apart from it, what are the other natural disasters? Like war can also be considered, leaking of the poisonous gas, pandemics, epidemics, ये सारी चीजें भी natural disaster का ही part है. Now we are going to study about the effects of natural disaster. This is our next topic. Natural disaster के आप इफेक्ट्स पढ़ेंगे. इफेक्ट्स क्या है? सो फर्स्टली सबसे पहला इफेक्ट होता है नेचुरल डिजास्टर का. दे लीव पीपल पॉवर्टी स्ट्रिकन, होमलेस, without any resources, usually alone with the loss of everything they own. So first the effect is loss of everything. Loss of everything. This is the effect of natural disaster. First effect. Second, the sudden loss of all their belonging as well as their dear one leave people stunned. This is sufficient to create a deep-seated psychological disorder. So it may also leads to psychological disorder. It may also lead to psychological disorder. Loss of everything lead to psychological disorder. Third,
Natural disasters are traumatic experiences that are emotionally wounding and shocking to those who survive the disaster. Post-traumatic stress disorder is a severe psychological problem that results from traumatic events such as natural disaster. This disorder has the following feature. Now, basically, that there are mainly two effects of the natural disaster: loss of everything and lead to psychological disorder. A disorder which is very famous, which happened because of the natural disaster, is the PTSD. PTSD के बारे में कुछ पढ़ेंगे. PTSD के कुछ फीचर्स हैं. PTSD has some features. So we have to now study about the PTSD features. तो हमने ये पढ़ा कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, उसकी वजह से PTSD होती है. PTSD, which means post-traumatic stress disorder, it has some following features. So the first feature is, you can see the feature also, or you can see that the reaction also. Means whenever any kind of natural disaster happen, so there are some reaction of the people over it. कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो लोगों के कुछ रिएक्शन होते हैं when that disaster take place. So first reaction is the immediate reaction. Immediate means तुरंत. Immediate reaction. What come under the immediate reaction? Immediate reaction to a disaster is commonly one of disorientation. People take some time to understand the full meaning of what the disaster has done to them. They may actually deny to themselves that something terrible has happened. Following the immediate reactions are the physical reactions. So जैसे ही कोई ट्रॉमा होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, सबसे पहले पर्सन इमीडिएट रिएक्शन करता है. इमीडिएट रिएक्शन में यूजुअली उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ. In order to understand these concepts, children, try to take an example. जैसे for example, at any home, the earthquake was happened. ठीक है, earthquake की वजह से पूरा the whole building fallen off. तो families, जिनकी भी family उसमें the family member become dead or they lost their family member, तो उस पर्सन पे सोचिए अगर उसको ये बताया जाए कि your house will devastated under the earthquake and all the family members are dead. So what will be the immediate reaction of that person after listening those things? It depends on person to person also. Somebody find difficult to understand and somebody take the time to understand the meaning. ये क्या हो गया? This is the immediate reaction. Somebody actually denying also. Denial की भी tendency देखी जाती है. Deny कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता. मतलब क्या immediate reaction हो सकते हैं? या तो they will go into a shock. They will deny the things. नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता. और they will take some time to understand the meaning. शॉर्ट में हो जाए, थोड़ा समझने की कोशिश करें क्या हुआ. ओके, जस्ट इमीडिएट रिएक्शन के बाद आता है फिजिकल रिएक्शन. फिर फिजिकल रिएक्शन होता है. जैसे कोई भी शॉकिंग न्यूज या कोई भी ट्रॉमेटिक न्यूज हम सुनते हैं, सुनते ही आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि शॉक में हो जाते हैं और उनके हाथ में अगर कुछ चीजें होती हैं या कुछ होता है वो गिर जाती हैं. तो दैट इज अ फिजिकल रिएक्शन. such as bodily exhaustion even without physical activity. कोई एक्टिविटी नहीं किया है पर फिर भी जैसे लगेगा बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है. डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में दिक्कत आएगी. चेंज इन द ईटिंग पैटर्न, खाने का मन नहीं करेगा. इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर. गेटिंग स्टार्टल्ड इजली कैन बी फाउंड अमंग द विक्टिम्स. ये सारे फिजिकल रिएक्शन हैं.
फिजिकल की बात आता है इमोशनल रिएक्शन। अब आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत तेजी से चिल्लाने लगेंगे, ये क्या हो रहा है, दे शाउट अ लॉट एंड दे क्राई बैडली, बहुत ज्यादा रोएंगे, तो इमोशनल रिएक्शंस आते हैं। इमोशनल रिएक्शन जैसे ग्रीफ एंड फियर, डर भी लगेगा ये क्या हो गया, इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेशन हो सकती है, एंगर, गुस्सा आएगा, झूठ बोल रहे हो तो मजाक कर रहे हो, ओके, हेल्पलेसनेस, लगेगा क्या करें, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, होपलेसनेस, डिप्रेशन, समटाइम एब्सोल्यूट लैक ऑफ इमोशन। कभी कभी आपने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, इस इंसिडेंट्स को सुनने के बाद कोई इमोशन नहीं आता, विच इज नोन एज नंबनेस, ओके, चुप हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, शॉर्ट लग जाता है जैसे लगता है। गिल्ट फीलिंग होती है फॉर हैविंग सर्वाइव्ड while someone else in the family died। उनको फिर अपने पे गिल्ट फीलिंग, मैं क्यों बचाऊं, मैं भी क्यों नहीं मर गया, why should I am not I left। तो गिल्ट फीलिंग फॉर हैविंग सर्वाइव्ड, ब्लेमिंग oneself, अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी रूटीन, इवन द रूटीन एक्टिविटीज ऑल्सो, और इन एनी एक्टिविटी, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, ये सारे इमोशनल रिएक्शंस में आएंगे। All these points are covered under the emotional reaction. Children, it's very important for you to segregate the difference between these reaction। immediate reaction में क्या आएगा, emotional reaction में क्या आएगा, physical reaction में क्या आएगा। Next is cognitive reaction। Fourth is cognitive reaction। इसमें क्या आएगा, कॉग्निटिव रिएक्शंस में क्या आएगा, जैसे वरी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, रिड्यूस स्पैन ऑफ अटेंशन, अटेंशन लैक करने लगेंगे, कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा हर एक चीज़ों में, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी भी भूलने लगते हैं, और विविड मेमोरीज, मतलब कि अनक्लियर रहेंगी मेमोरीज डेट आर अनवांटेड, और नाइट मेयर्स ऑफ द इवेंट, कभी कभी किसी लोगों को बुरे सपने भी आते हैं उस इवेंट के, तो दैट इज नोन एज नाइट मेयर्स। तो ये सब कुछ कॉग्निटिव रिएक्शन होता है व्हेन एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर और एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा हैपन। इमीडिएट रिएक्शन, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव। One last is the social reaction. The fifth is the social reaction. Yes children, social reaction भी होता है। social reaction क्या हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो और सोच सकते हो। ऑब्वियसली लोगों से मिलना जुलना नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम अदर, गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अननेसेसरी, लड़ने लग जाएंगे किसी से भी, लड़ाई झगड़े करेंगे। हैविंग फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट इवन विद इवन लव्ड वंस, फीलिंग रिजेक्टेड और लेफ्ट आउट। Surprisingly, very often in the midst of severe emotional reaction to stress, some survivor may actually help in the healing process. Yet survived, having been through the experience and survived it and staying alive, these person may develop a positive outlook on life with empathy and pass on this attitude to other survivor. I already told you it depend on person to person also. कुछ लोग उन्हीं सब चीज़ों से बहुत चीज़ें सीख लेते हैं, दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एंड दे हेल्प अदर सर्वाइवर ऑल्सो। बट बेसिकली इसका ये 5 रिएक्शंस आता है। इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल। दिस यू हैव टू डिस्कस। ये रिएक्शंस लंबे समय तक भी चल सकते हैं, डिपेंड ऑन द केसेस। However, with proper counseling, अगर प्रॉपर काउंसलिंग करें या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करें तो PTSD का भी रेमेडी हो सकता है, ठीक है। The poor or women who have lost all their relatives and orphan children who are survivor of natural disaster need special treatment and care. As in the case of other environmental stressor, people react with different intensity to natural disaster.
In general, the intensity of reaction is affected by रिएक्शन की इंटेंसिटी कुछ चीज़ों पे अफेक्ट करती है। जैसे कि ये जो रिएक्शन हमने ये तो पढ़ा कि नेचुरल डिजास्टर हुआ, इट मे लीड टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस which may develop into a disorder which is known as PTSD, and it has some features, it has some reaction. We read that these are the reactions. हमने ये पढ़ा कि ये कुछ reactions होते हैं. Now हमने reactions तो पढ़ा, but कितना ये लोगों को affect करेगा इसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। इन रिएक्शंस की इंटेंसिटी क्या है ये भी बहुत हद तक डिटरमाइन करती है पर्सन के मेंटल हेल्थ को। जैसे कि रिएक्शन की इंटेंसिटी कुछ चीज़ों से अफेक्टेड होती है। मतलब ये अगर मान लीजिए इमीडिएट रिएक्शन पर्सन कर रहा है तो कैसा कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या है। फिजिकल रिएक्शन कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये कुछ चीज़ों से डिटरमाइन होती है। जैसे कि सबसे पहला है सीवियरिटी ऑफ द डिजास्टर। जो डिजास्टर हुआ वो कितना सीवियर है उस पे भी डिपेंड करता है पर्सन के रिएक्शंस, पर्सन की इंटेंसिटी। तो उसे पढ़ लेते हैं। अब ये रिएक्शन कितने इंटेंसिटी में होंगे, इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन जो की इंटेंसिटी वो किन चीजों से अफेक्ट होती है। सबसे पहले सीवियरिटी ऑफ द डिजास्टर, यानी जो डिजास्टर हुआ वो कितना सीवियर है, कितना सीवियर है। जैसे कि उसमें कोई फैमिली मेंबर लॉस हुआ या नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। कितना वो सीवियर है, डिजास्टर ने कितना लॉस किया है आपका। सीवियरिटी ऑफ द डिजास्टर ने क्या लॉस किया, ठीक है, सीवियरिटी क्या है। दूसरा लॉस कितना, हाउ मच लॉस हैपन, ठीक है, लॉस हैपन ये कितना है, कैसा है, सीवियरिटी क्या है डिजास्टर की, ठीक है। देन इंडिविजुअल की कोपिंग एबिलिटी, इंडिविजुअल्स कोपिंग एबिलिटी ये भी डिटरमाइन करता है। कई में कोपिंग एबिलिटी नहीं होती है, बहुत से लोग सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो कोपिंग एबिलिटी कैसी है ये भी डिटरमाइन करती है रिएक्शंस के इंटेंसिटी को। मान लीजिए अगर डिजास्टर का सीवियरिटी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन की इंटेंसिटी भी ज्यादा हाई होगी। लॉस अगर बहुत ज्यादा है तो इंटेंसिटी अगेन हाई हो जाएगी। कोपिंग एबिलिटी अगर कम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटेंसिटी रिएक्शंस की ज्यादा होगी। रिएक्शन की इंटेंसिटी डिटरमाइन करती है इन सारे फैक्टर्स पे। फोर्थ, other stressful experiences before the disaster. For example, people who have experienced stress before may find it more difficult to deal with yet another difficult and stressful situation. तो स्ट्रेसफुल पहली बार हो रहा है तो एक बार फिर भी पर्सन कहते हैं ना कि झेल लेते हैं, बट वही चीज अगर रिपीटेडली हो रही है तो इट विल बी अनबियरेबल, इट इज समथिंग अनबेरेबल, और इंटेंसिटी उतनी ही हाई होगी। अगर इस स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हो रखा है पर्सन को पहले भी, तो फिर से कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, मान लीजिए पर्सन ने अपने फादर को लॉस किया, फिर कुछ टाइम बाद मदर को भी लॉस कर लिया, तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी जो है रिएक्शन की हाई होगी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि इंटेंसिटी हाई होगी या लो होगी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन।
So I hope in the today's video you are understanding the topic. We are discussing about the natural disaster, all about the natural disaster. क्या होता है natural disaster से, क्या effects हो सकते हैं, कौन से common examples हैं natural disaster के. नेचुरल डिज़ास्टर में कुछ रिएक्शंस आते हैं पर्सन के, वो रिएक्शन की इंटेंसिटी भी कुछ फैक्टर से डिटरमाइन होती हैं विच आर हेयर मेंशन्ड. सो चिल्ड्रन, प्लीज जस्ट फोकस टुवर्ड योर स्टडीज, स्टडी प्रॉपरली, डू द रिवीजन एंड वेर एवर यू फाइंड आउट आस्क द क्वेश्चन. सो आगे बढ़ते हैं अब इस टॉपिक के. अब हमें ये पढ़ना है, हमने तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर के क्या इफेक्ट होते हैं. अब ये भी तो पढ़ना है कि उसको रोकेंगे कैसे. व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स विच वी कैन टेक. वी कांट स्टॉप इट टू बी हैपन, बट वी कैन टेक अ प्रिवेंटिव मेजर्स. कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं उससे पहले, तो उन्हें पढ़ेंगे. आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन. सो आई एम रबिंग इट. सो आज का टॉपिक पूरी तरह से नेचुरल डिजास्टर पे था. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रॉम दिस वीडियो. Although we are aware that most natural disaster can be predicted only in a limited way, there are ways of being prepared to minimize their devastating consequences in the form of three conditions: warning, safety measures and treatment. मान लीजिए, देखिए कुछ तो अनप्रिडिक्टेबल है कि वो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें होती प्रिडिक्टेबल होती हैं कि ये देखो ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं. तो हियर यू विल राइट डाउन द हेडिंग प्रिवेंटिव मेजर्स. इसमें सबसे पहला वार्निंग, सेकेंड सेफ्टी, थर्ड ट्रीटमेंट. वार्निंग मेजर, सेफ्टी एंड थर्ड इज ट्रीटमेंट. वार्निंग में क्या है? If you have been listening to the radio in the recent past, you might have heard advertisement that mentioned that what people should do when it is announced that some natural disaster such as flood is likely, when cyclone or high tides are predicted. Fishermen are asked not to venture into the sea. मतलब वार्निंग्स कहने का मतलब ये है, वार्निंग्स की मीनिंग ये है कि कभी कभी लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन एनी नेचुरल डिजास्टर इज अबाउट टू बी कम, तो अगर हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग चैनल्स हैं या जो भी हमारे सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हमें ये बता देते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी हैपन. एंड व्हेन वी गेट टू नो कि ऐसा होने वाला है, तो एक वार्निंग आती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि ऐसा करिए. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अभी पैंडेमिक है, तो वार्निंग वाज देयर फॉर एवरीवन दैट यू शुड नॉट गो आउटसाइड, यू शुड वेयर अ मास्क. सो ये इस तरीके की वार्निंग से भी हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं. सेकेंड होता है सेफ्टी मेजर. सेफ्टी मेजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Safety measures, unfortunately, in the case of some natural disasters such as earthquake, even if prediction is possible, the event comes too suddenly for people to be warned or to be mentally prepared. Therefore, tips to be given beforehand about what to do when there is an earthquake. जैसे कि कभी कभी क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, तब तो वार्निंग दी जा सकती है, ठीक है, बट कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, अचानक से हो नहीं, पता नहीं था कि ऐसा होगा, तो उनके लिए एक पहले से ही आपके पास प्रिवेंटिव मेजर कुछ टिप्स होने चाहिए. जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो ये बोला जाता है कि हाँ, आप कोई बाहर हैं, अगर पेड़ के नीचे हैं तो आप मत खड़े रहिए वहाँ पे, ठीक है. घर में भी आप ऐसे जगह मत रहिए जहाँ पे कोई आसपास कोई भारी सामान है, कोई अलमीरा है, या वहाँ पे नहीं रहिए, ठीक है.
try to be there at a place which is free vacant, ओके, उस जगह पे रहिए। तो ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स और टिप्स होते हैं जो बताए जाते हैं, जो हम फॉलो करके अपने आप को बचा सकते हैं। इनके अलावा अगर वार्निंग और इनसे भी नहीं हो रहा है तो कुछ डिसऑर्डर्स के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। ट्रीटमेंट में जैसे कि काउंसलिंग है या थेरापीज हैं, साइकेट्रिक हेल्प है, रिहैबिलिटेशन है, फॉलो अप है, जिससे कि आप नेचुरल डिजास्टर से ओवरकम कर सकते हैं। So this is for all children today. I hope you understand the topic. Thank you so much for carefully listening to me and observing this video.